Good morning. Today we are going to start second chapter of our physics, that is force and laws of motion. Before knowing about the force, once we should recap what we have studied earlier. In chapter 1, we have read about the motion. Physics is divided into so many branches, and the kinematics is a branch of physics in which we learn about the motion of a body, or motion of a point body, or motion of a body that is a collection of points. Physics physics is a branch of science in which we studied the laws of nature, the laws which are governed by the nature. Physics is nothing but the philosophy of nature. In physics, whatever we study, that is nothing but the laws governing by the object in real life. The word physics has been derived from a Greek word, that is physios, and the meaning of physios is nature. It means physics is a branch of science which is purely based on the nature. And again, the kinematics, which is a branch of physics in which we deals about the distance, displacement. Whenever we ask the object has moved, something, when we see an object is here, and after some time the object as is at B, it means the object has moved. And when we ask by how much, by how much, it means I am asking about the distance. I am asking about the distance or displacement. What will be your answer when I ask how long it takes? Yes, yes. If I ask how long it takes to cover the distance between A to B, it means I am asking how long. It means I am asking about the time. If it has covered 10 meter, then it will be the answer of your first part, distance, and in 10 seconds, this is time. And what happens when these quantities are divided? What happens? We find the ratio of distance and time. This ratio is nothing but the a physical quantity which is known as speed. We have studied all these concepts in first chapter. Think a Bajaj Pulsar takes 6 seconds. It is the speedometer, and when the bike gets started, the reading was 0, and within time 6 seconds, our reading is 72 kilometer per hour. It means this journey, this change which has taken place from 0 to 32 kilometer per hour
in 6 seconds. Then here we have change in velocity. Yes. Then the quantity we have change in velocity upon change in time. And this quantity is nothing but the acceleration. ठीक है, तो हम अभी तक में देख लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी दूरी तय की गई, तो आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, कितनी देर में यह दूरी तय हुआ, कितनी देर में यह डिस्टेंस को कवर किया गया, तो हम आपसे टाइम पूछ रहे हैं। तो इन सारे चीजों का जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब आइए आप लोग एक नए ब्रांच फिजिक्स, नेचर के फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फिजिक्स के एक दूसरे ब्रांच के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स। जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें यही था कि मोशन हुआ, स्पीड में चेंजेस आया। अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाई मोशन, व्हाट इज द काउज ऑफ मोशन। यानी कि डायनेमिक्स के अंतर्गत हम मोशन क्यों हुआ, मोशन का कारण क्या है, इन सारे प्रश्नों का जवाब जानते हैं। तो हम लोग तो यहां पे पढ़ेंगे कि भैया न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिया और इस लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। लेकिन क्या न्यूटन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में थिंक किया? नहीं। आप लोगों ने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। वीडियो है, आप लोग फिर देख के जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, अभी सुनते जाइए। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले कहा अपने डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से कि whenever we throw something it rolls over and gets stopped। मतलब अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो उन्होंने इसके डिस्क्रिप्शन में फिर कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इफ वी थ्रो समथिंग इट गेट्स स्टॉप, if we throw something it get stopped। तो हम लोग भी यही जान रहे हैं कि अगर हम एक बॉल लें और उसको फ्लोर पे पुश कर दें तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एरिस्टोटल साहब ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि चीजें जो है वो रेस्ट में रहना चाहती है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि द नेचुरल स्टेट ऑफ द थिंग्स इज टू बी एट रेस्ट। एरिस्टोटल साहब का कंक्लूजन था द नेचुरल स्टेट ऑफ द थिंग्स इज टू बी एट रेस्ट। यानी कि हर चीज जो है वो रेस्ट में रहना चाहती है। रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट है हर ऑब्जेक्ट का। यानी कि कुछ भी अगर मूव कर रहा है तो वो थोड़े देर में रेस्ट में ही आ जाना है उसको। क्या ये आपको सही लगता है? क्या ऐसा ही होता है? हाँ, हमने इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कह दिया यहाँ पे
और हमने मान भी लिया इस चीज को, लेकिन फिजिक्स यहां पे स्टॉप नहीं हुआ, अभी भी था। जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमको नहीं मिल पा रहा था, हमारी जिज्ञासाएं अभी शांत नहीं हुई थी, अभी फिजिक्स को एक और लंबी उड़ान चाहिए थी। तो न्यूटन साहब जो अपने जीवन में इतना अधिक काम कर पाए, उसके पीछे न्यूटन साहब का अकेले का वर्क नहीं है, एरिस्टोटल साहब का भी वर्क था, और भी ढेर सारे साइंटिस्ट इस पे जो वर्क कर रहे थे, सभी के वर्क्स का स्टडी करने के बाद न्यूटन साहब ने कंक्लूड किया और 3 लॉज को गवर्न किया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को जो जानते हैं, वो न्यूटन साहब ने फिर दिया। तो इसके बाद अब हम जान रहे हैं कि फोर्स क्या है। अगर आपसे पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो आपका आंसर होगा जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम कहें कि फोर्स इज द काउज, फोर्स इज द काउज फॉर द मोशन, force is the cause to bring any object to rest, force is the culprit which can change the shape of an object. Then what is that? Push or pull is called force. Of course, we always apply the force in the form of push or pull. We always apply force in the form of push or pull. Either we can push something or we can pull something to apply the force. अप्लाई करते हैं फोर्स को, पुश और पुल के ही द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं फोर्स को। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को। अब टाइप्स ऑफ फोर्स तो बताने की आवश्यकता है कि है नहीं, कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ? हाँ, लॉज ऑफ मोशन तो अभी आगे है, अभी पहले कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया हमारा, जब हमको फोर्स अप्लाई करने के लिए फिजिकली किसी ऑब्जेक्ट को टच करना होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, आपका आंसर सही है कि मस्कुलर फोर्स से हम जैसे एक बुक को होल्ड कर रहे हैं या मार्कर को हम होल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मस्कुलर फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। हम बिना कॉन्टैक्ट किए हुए, बिना मार्कर सरफेस को टच किए हुए इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो फोर्स को पहले 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किए हमने, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स फिजिकली कॉन्टैक्ट के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो वर्क करता है फ्रॉम अ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ आई होल्ड मार्कर विथ आवर muscular force and if I leave it, then it gets down. It means it is attracted by gravitational force and comes downward. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि डिस्टेंस पे भी वर्क कर रहा है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी ऑल नो दैट similar poles repel each other and unlike poles attract each other. The next example of non contact force is electrostatic force, that we have done some experiment. If we rub the comb, I have no hair on my head, you are having, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो फोर्स पीस ऑफ पेपर और कॉम्ब के बीच लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमको अब ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, बोलिए। हाँ, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस फोर्स का देखिए डेफिनेशन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is zero, then the forces are said to be balanced. And if the accumulation of all the forces acting on a body is not zero, then the forces are said to be unbalanced. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स टोटल होके जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। और अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन लिख दिए हमने। आइए अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं। अब हम लोग बैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स को, यस प्लीज, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। क्या? अभी दोनों फोर्स को फिर से बता रहे हैं, ठीक ना। बैलेंस फोर्स के बारे में बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। अब क्लास नाइन्थ में आने के बाद हमने दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा, एक था हमारा स्केलर और एक था वेक्टर। तो हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर quantity and unit of force, unit of force is newton, unit of force is newton. It means if I write a force then हाँ 50 newton towards west, it means it has both magnitude and direction, clear। हाँ, जब भी फोर्स को हम बताएंगे तो इसका कंप्लीट सेंस तभी आएगा जब इसके साथ हम डायरेक्शन ऐड करेंगे। अब हम आपको बताएं कि देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारा डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक ना। अब इस पे हम इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन
क्या लिखते हैं? यूनिट। ऐसा यूनिट है। अब आप 100, अगर आपको लेंथ लिखना होगा तो 100 मीटर सेंटीमीटर लिखेंगे ना कुछ, तो उसी तरह से फोर्स का। आइए अब हम लोग फिर से, हम कहां पे थे? हाँ, हम आपको बता रहे थे कि अगर हम आपको सिर्फ बोले कि 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन आपको हम नहीं बताए तो इस फिजिकल क्वांटिटी का सेंस हमारे पास नहीं आएगा। और जब हम बता देंगे कि 50 न्यूटन टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स साउथ, तो यहां पे हमारे पास कंप्लीट सेंस आ गया। अब आपके पास डायरेक्शन आ गया कि हाँ, हमको इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है। ठीक है ना? यहां तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, साउथ के डायरेक्शन में, टुवार्ड्स साउथ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां पे, अब हम एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बता रहे हैं, ठीक ना? अब यहां पे हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? अब ये फोर्स है हमारा 50 न्यूटन, ये फोर्स है हमारा 60। क्या? वही तो चेक कर रहे हैं भैया। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस फोर्स है और कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स है। हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक ना? अब मान लो यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 70 न्यूटन का फोर्स अप्लाई अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, हम इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन देख लो, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर है आप लोगों के पास? अब यहाँ पे दो डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है। तो अब दूसरा जो हम इस ऑब्जेक्ट का FBD बनाएंगे, इसमें हमको क्या करना है कि एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को एड अप कर देना है। तो टुवार्ड्स ईस्ट लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन और 60 न्यूटन, तो टुवार्ड्स ईस्ट में हम फोर्स कितना कर देंगे? 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110 न्यूटन। अब टुवार्ड्स वेस्ट कितना फोर्स लग रहा है हमारे पास? तो हमारे पास आ गया 60 70 न्यूटन। अब देखो, फिर से इस ऑब्जेक्ट का जब FBD ड्रॉ करेंगे हम, तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा कि अभी इससे पहले जब हम लोग चैप्टर 1 में वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हम जानते थे कि जब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब जब हमारे पास वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था तो हम क्या करते थे? या तो वेलोसिटी को निगेटिव लेते थे या एक्सेलरेशन को निगेटिव लेते थे। यहां भी सेम काम करना है। एक वेक्टर है हमारा जो ईस्ट के डायरेक्शन में, अगर ईस्ट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो वेस्ट के डायरेक्शन को हमको निगेटिव लेना होगा। ये कोई कन्वेंशन गिवन नहीं है कि हमको ईस्ट पॉजिटिव लेना है या वेस्ट पॉजिटिव लेना है। ये जस्ट फॉर कन्वेंशन, अपनी सुविधा के अनुसार हम किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव, अगर हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे। तो यहां पे अब देखो, हमने 130 न्यूटन हमने पॉजिटिव किसको लिया? ईस्ट को। तो ये हो गया हमारे पास प्लस 120 110 और ये हो गया हमारे पास माइनस 130। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स दोनों को ऐड कर दो, 110 माइनस 130 इक्वल्स टू माइनस 20 न्यूटन। माइनस 20 न्यूटन आया। तो माइनस किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है? टुवार्ड्स वेस्ट। माइनस का मतलब क्या हुआ? टुवार्ड्स वेस्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स, वो है हमारे पास 20 न्यूटन टुवार्ड्स
वेस्ट। तो यहाँ माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा था? डायरेक्शन को। माइनस साइन सिर्फ कन्वेंशन है, वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा था। निगेटिव, जब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आता था तो हम क्या बताते थे कि हेयर निगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन शोज इट इज रिटार्डेशन। तो उसी तरह से यहाँ पे जो -20 आया तो वो माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है और वो टुवार्ड्स वेस्ट था। तो हम माइनस माइनस प्लस किसको कर रहे हैं भैया? माइनस माइनस, दो माइनस कहां आया जो आप माइनस माइनस प्लस पे आ गए? बताइए, अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। दो साइन कहां से लाए? नहीं, वो नहीं करते थे कहीं पे। हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या है? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इसलिए हम वहां पे निगेटिव साइन के साथ आया तो हम लिख दिया कि रिटार्डेशन है। यहां पे निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक ना? और निगेटिव साइन जो आया इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है, वो वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां पे नेट फोर्स क्या आ गया हमारा? नेट फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे कैसा फोर्स लग रहा है हमारे पास? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। और यही अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 आ जाता तो हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स होता, ठीक ना? तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जांपल। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इस डायरेक्शन से 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, और इस डायरेक्शन से 70 न्यूटन और 80 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। अब जब इसका दूसरा एफबीडी बनाए हम तो इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया? 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो गया? 70 प्लस 80 इक्वल्स टू 150 न्यूटन। अब यहां पे हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा? नेट फोर्स। अब अगर आप वही पिछले साइन कन्वेंशन को देखें, पॉजिटिव ले लें ईस्ट को और निगेटिव ले लें वेस्ट को, तो अब ये वाला आ जाएगा हमारा +150, ये आ जाएगा हमारा -150। तो अब नेट फोर्स क्या आ गया? 150 माइनस 150 इक्वल्स टू 0 न्यूटन। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। नो force is acting on the object. No net force is acting on the object. Hence, a balanced force is acting over this object. ठीक है? अब यहां पे आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझ पाएंगे अच्छे से। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स तो लग ही रहा था, फोर्स तो लग ही रहा था, लेकिन नेट फोर्स जो हम कैलकुलेट करके लाए वो 0 हो गया, ठीक ना? ठीक है, अब देखो, अब जब किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होता है। टू प्रोड्यूस मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स शुड एक्टिंग ओवर दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन करवाना है तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। आप टग ऑफ वार के बारे में तो जानते होंगे। टग ऑफ वार, इसमें क्या होता है कि 3 लोग इधर से खींच रहे हैं और 3 लोग इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना?
अब मानो कि अगर ये तीनों 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज 0, hence the rope will be at rest. यहाँ पे रोप जो होगा वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी मोशन शो नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास अब दूसरे केस में ऐसा हो जाए कि इधर 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 160 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया मोशन, यानी कि अब हम लोग क्या समझे, अब वही बात को याद करो, एरिस्टोटल ने जो कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, तो उसको तो रुकना ही है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑलवेज मोशन में रखना चाहते हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा के लिए एक्ट करवाते रहना पड़ेगा। देयर शुड बी एन अनबैलेंस्ड फोर्स ओवर दैट ऑब्जेक्ट टू कीप इट इन मोशन। हाँ, रहना चाहता है रेस्ट में, वो हमने नहीं कहा, वो एरिस्टोटल साहब ने कहा था। हाँ, तो यहां पे अब क्या हो रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किए तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और जब तक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जब तक हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा था तब तक हम फ्रिक्शन को कम करके बॉल हमारा रोल होता रहा, और जैसे ही हमारा फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स दोनों बैलेंस्ड हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा उसको हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोग इसका आंसर निकाल के आइएगा। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इधर है 10 न्यूटन, इधर है 9.5 न्यूटन। बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, आपको बताना है मोशन किधर होगा, आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, केस 1 हो गया ये। सेकेंड केस में टुवर्ड्स ए 100 न्यूटन, टुवर्ड्स बी 100 न्यूटन, मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। और तीसरे केस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के अपोजिट नहीं, बोलने में कंफ्यूजन मत कीजिए, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन हमारे अपोजिट नहीं, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, क्या चीज, अरे रुको ना 2 मिनट के लिए, पूरा क्वेश्चन लिखने देंगे, पहले सुन तो लो जो बोल रहे हैं। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, लिखो क्वेश्चन जितना अच्छे से लिखना है, रिकॉर्डिंग में देख लेना, जब बोल देते हैं फिर भी लोग डिस्टर्ब करता है बीच बीच में बोल के। जब कोई चीज बोल रहे होते हैं तो उसको सुना कीजिए अच्छे से, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा ये एक सरफेस हैंड है ये, और दूसरा ये, तो अगर ये रेस्ट में है, ये वाला हाथ हमारा रेस्ट में है और ऊपर वाला हाथ हमारा आगे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो ये जो आगे जाना चाह रहा है इसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करता है, ठीक ना।
हमेशा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगर आप ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन वेस्ट के डायरेक्शन में होगा, अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन साउथ के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो, देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, हरिओम।